What is 9th International Foundry Congress and Exhibition? 9th International Foundry Congress and Exhibition. It is an exhibition with the main objective of connecting our foundries to the industrial sectors of Pakistan. We have more than 30 or so industrial sectors, and these industrial sectors now need local development of their imported castings and imported items. And these industrial sectors, over a period of time, they've been importing, and that has caused the local industry not to develop according to the requirements of today's industry. So now the uniqueness of this exhibition is that we are connecting the industrial sectors with the foundry industry, enabling the industry to find host of companies that can develop their products locally. And that will be a pleasant surprise for the Pakistan industry, because the industry, most of them, they are working with just a few foundries. And we have foundries exporting their product to the world, and the local industry is not aware of it. So this exhibition will actually establish a lot of mileage for both the industry and the foundry sector. We have commercial sessions which will be conducted by the industry, and we will also have technical sessions which will be conducted by local and global experts, because the new technologies need hand-holding, and the global experts will do that. And the local experts who've already done a lot of work in the new technologies will guide foundries into new technologies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने ख्यालात और अपनी जो एक्सपीरियंस इस सारी एसोसिएशंस के अंदर, इस एसोसिएशन के अंदर जो मुझे हासिल हुआ IFCs करके, वो आपसे शेयर करूं। ये 9th IFC मीन कि ये हमारी 9th कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है, और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 एग्जीबिशन बड़ी कामयाबी से कर चुके हैं, जिसके अंदर जो प्रोजेक्शन ऑफ फाउंड्री इंडस्ट्री है, द फाउंड्री टेक्नोलॉजी बेस्ड इन पाकिस्तान, और हमारी स्किल डेवलपमेंट फॉर फाउंड्री इंडस्ट्री, और जो फाउंड्री इंडस्ट्री से मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उन लोगों को हम अपने इस IFC के अंदर उजागर करते हैं। लोग आते हैं, वो शोकेसिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। हमारे स्टॉल्स हैं, हमारे सेमिनार्स हैं, हमारी वर्कशॉप्स हैं, और जिसके ऊपर लोगों के मसाइल, और वो लोग जो हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, वो सेक्टर्स जो हमारी प्रोडक्ट्स को अपने तय इस्तेमाल करते हैं, वो लोकल लें या इंपोर्ट करें, उनको हम ये बताते हैं कि आपको बेहतरीन मेयार, बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको डोर स्टेप पे अवेलेबल है। Who should attend IFC 2025? This exhibition should be attended by the technical teams and the engineering teams from various industries, and especially foundry-based engineering companies. People should come from chemical sector, people should come from fertilizer, cement, railways, defense sector, navy, maritime, you name it, and people should be there, because this is something which will be an eye-opener for the industry. हाँ जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। डेफिनेटली ये एक मार्केटिंग से रिलेटेड सवाल है। उन लोगों को तो आना चाहिए जो लोग फाउंड्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और जो लोग फाउंड्री से इन्वॉल्व हैं वो डेफिनेटली आते हैं। लेकिन इसमें मेनली वो सेक्टर्स हैं जिनमें सीमेंट है, जिसके अंदर शुगर है, जिसके अंदर डिफेंस है, जिसके अंदर मेलैंड है, जिसके अंदर हमारे ऐसे सेक्टर, जिसमें ऑटो एक बहुत बड़ा सेक्टर है,
वो आते भी हैं और उनको आना भी चाहिए ताकि वो आके देखें कि पाकिस्तान के अंदर अब जो कास्टिंग का मेयार है वो अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे चला गया है। लोग नई टेक्नोलॉजी के अंदर जा चुके हैं और लोग बेहतरीन मेयार के साथ पुर्जाजात और कास्टिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इन वॉल्यूम्स बना रहे हैं। Why IFCE 2025 is a must-attend event? Well, it is a must-attend event because this is the only event which happens in the foundry industry, and this year we're going to have the industry leaders who will be present at the inaugural session, and these leaders will actually be guided into guiding their technical teams and their supply chain teams, how they can connect with the foundries and what are the capacities of our foundries today. It'll be an eye opener for the industry and especially for the decision makers. So we have invited the major decision makers from various industries to our inaugural sessions, and which will also be participated by the commercial counselors from various embassies and a few of the ambassadors. देखें, कोई भी जो एग्जीबिशन होती है वो बेसिकली उस रीजन की, उस मुल्क की, उस एसोसिएशन की, उस टेक्नोलॉजी की, उस फील्ड की एक शोकेसिंग है, एक प्रोजेक्शन है। आप किसी भी एग्जीबिशन को विजिट किए बगैर किसी मुल्क, उसकी प्रोडक्ट्स, उसके काम का मेयार आप असेस नहीं कर सकते। तो ये अटेंड करने के बाद इसको लोग जब विजिट करेंगे, अटेंड करेंगे, तो लोगों को अंदाजा होगा कि अब हम लोग इस वक्त अपने फाउंड्री की प्रोडक्ट्स के मेयार में कहाँ खड़े हैं। और वही एक वाहिद जगह है जहां हमारी की हुई शोकेसिंग लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी और लोगों को इस चीज का तासुर देगी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट जो है उसका कितना बेहतर ये एक जरिया है, कितना बेहतर रास्ता है। What makes IFCE 2025 unique? This happens once in 2 years, and the uniqueness of this event is that it brings the whole of the foundry industry, the metal casting industry, and the companies which are associated with the metal casting industries, the foundries, together. It's an excellent networking opportunity, and the industry learns from each other. And this is the only event where the foundries and the industry will discover the potential of each of the sector. चूंकि ये हमारी 9वीं IFCE है और जब हम चले थे और आज जो हमारा सफर है उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका एक आप कहें कि उसका एक फल का पक जाना वो इस तरह का हो चुका है कि जिसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस, जिसके अंदर हमारी प्रोजेक्शन बहुत डिफरेंट हो चुकी है। ये बिल्कुल इस दफा एक यूनिक सी IFCE है जिसको हमें लास्ट IFCE की वजह से और बेहतर करने का मौका मिल रहा है। और वो मौका क्यों मिल रहा है, उसका मौका मिलने की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस वक्त जो हमारी सनत है वो इस वक्त जा रही है बहुत ज्यादा बुरहान में। और बुरहान क्यों है? कोई माशी बुरहान है और बहुत सारा वो बुरहान है कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारी उन तकलीफों का मामला है जो इंडस्ट्री के अंदर कवर होने की जरूरत है। तो इसके अंदर हमारी इस बार जो सारी प्लानिंग है उस प्लानिंग में हमने इस बार सिर्फ और सिर्फ उन सेक्टर को टारगेट किया है जो सेक्टर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों को ये डॉलर पैरिटी का जो बहुत ज्यादा फर्क आया है, इन्फ्लेशन का जो बहुत सारा मसला हुआ है, उसकी वजह से उनको इंपोर्ट के अंदर जितनी इश्यूज आ रहे हैं, दे लाइक टू डेवलप लोकली दोज पार्ट्स। तो मैं ये समझता हूं कि उनके लिए ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि वो IFCE के अंदर आते हैं और उनको उन सारी चीजों को हासिल करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में
एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको चीज की अवेलेबिलिटी जो है वो इस IFC को यूनिक बना रही है, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी खिदमत है जो पाकिस्तान फाउंड्री एसोसिएशन करने जा रही है। What are the key benefits companies can leverage by participating in IFCE 2025? I've asked, in fact, at Pakistan Foundry Association, we're insisting the foundries to get a stall, because when the industry will come, we want more foundries to interact with them directly, and that will give them an opportunity to discuss their technical needs. And otherwise, these foundries will have to spend a lot of their resources getting to the industry where these sectors are located. Some of them, they are operating in remote areas of Pakistan. Some of them they are areas where usually small and medium-sized foundries do not go. देखें जी, जहां तक कंपनीज के बेनिफिट करने की बात है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल भी हो जाता है, और थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि जो एसोसिएशन है वो इसके अंदर अपने मेंबर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती है। डेफिनेटली मेंबर्स बेनिफिट करते हैं, वो मेंबर्स बेनिफिट करते हैं जो लोगों को समझते हैं और उनकी डिमांड को समझते हैं, उनके मेयार को समझते हैं, एंड दो नो के कमिटमेंट जो है वो इंडस्ट्री में क्या माने रखती है। इंडस्ट्री बेस करती है आपकी कमिटमेंट पे, कमिटमेंट में क्वालिटी है, ऑन टाइम डिलीवरी है, और कंसिस्टेंटली किसी चीज को आपने लेके चलना, ये कमिटमेंट का हिस्सा है। तो जो हम में से जो फाउंड्री मैन भाई इन सब चीजों को इंशाल्लाह लेके चलेंगे, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे। How can company book a stall or sponsor the event? Companies should contact our association manager, Mr. Muzammil, at our office. We are on social media. We are advertising. We are telling the companies that the response is enormous, and we are more than half of the exhibition is already booked. So we have just a few stalls left, and the companies who can benefit from this, they will benefit a great deal. डेफिनेटली जी, कंपनी जो है वो पाकिस्तान फाउंड्री एसोसिएशन की वेबसाइट पे आएगी और वहां अवेलेबल स्टॉल को देखेगी, और अवेलेबल स्टॉल को क्लिक करके फिर एसोसिएशन मैनेजर जो हमारे हैं उनसे कांटेक्ट करके उसकी कंफर्मेशन और प्राइस, सारी चीजें जो ऑलरेडी वेबसाइट का हिस्सा है वो तो बुक करेंगी। और जो लोग स्पॉन्सर करना चाहेंगे, जो अपनी शो केसिंग को मजीद एक अपग्रेड करना चाहते हैं, और जो हमारे जितने भी हमारे लगे होंगे बैकड्रॉप्स और हमारे बड़े फ्लेक्सीज, उसके अंदर अगर वो अपनी जगह, अपना नाम चाहेंगे तो वो पार्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप आ जाएंगे, जो कि 3-4 किस्म की हमारी डायमंड है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन स्पॉन्सरशिप्स के अंदर आ जाएंगे। और उस स्पॉन्सरशिप से डेफिनेटली जो शो केसिंग है, जो आपका एक लेवल ऑफ प्रोजेक्शन है, वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाता है। How can companies stay updated about IFCE 2025? Through social media, we are also advertising on Facebook. We are on social media. We are doing whatever we can. So we don't want. We are putting up posters in various exhibitions also, so people would be more aware of this event. ये वक्त है इस वक्त आपका एक उस मीडिया का, उस सोशल मीडिया का वक्त है जो आपको एक मिनट के अंदर पूरी दुनिया से आगाह रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये जो शो है, ये हमने जिस कंपनी के साथ इस शो को साथ अटैच किया हुआ है, वो लोग हमारे इस मार्केटिंग को, इस चीज को टाइम टू टाइम लेके चल रहे हैं, और हमारी वेबसाइट हर वक्त अपडेटेड है। और जब हमारी वेबसाइट अपडेटेड है तो हमारे जितने भी दोस्त इसको विजिट करना चाहते हैं, इसमें एग्जिबिट करना चाहते हैं, वो टाइम टू टाइम वेल इन्फॉर्म्ड हैं। और मैसेजेस के साथ भी जो लोग एग्जिबिटर्स हैं, दे विल बी गेटिंग मैसेजेस वेरी सून ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग इन फॉर दिस इवेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया का और हमारी मार्केटिंग कंपनी का इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है, और बड़ा पॉजिटिव किरदार है
कि वो आगाह रखेंगे और आगाह रखते हैं।